Students, now we explain the other functional points related to stomach. You know, gastric glands present in stomach and different type of cells, that is oxantic cell or parietal cell, peptic cell or chip or zymogen cell, goblet cell and enteroendocrine cell. Enteroendocrine cell release different type of hormones, that Argentinian cell, D cell, G cell and ECL cell participate to release different type of chemicals and hormone, and all the liquid part secrete inside stomach is known as gastric juice, is known as gastric juice. In a healthy person, adult healthy person, generally release 2000 to 3000 milliliter gastric juice per day, or you say that 2 to 3 liter. So 2 to 3 liter gastric juice release per day inside stomach. So we need a special accommodation point to functional and activation of different type of enzymes and digestion related function activity. You know, this type of concentration or this type of amount need some special liquid part, enzymatic part and especially water. If you take water 5 to 6 liter per day, then normally this amount of gastric juice have to form with the help of different type of cellular part in gastric area, or you say that gastric glands, and their normal pH value, the gastric pH value is in general 2 to 3. So gastric pH is 2 to 3, but you remember one thing that is more important, the pH in HCl, because HCl also release in gastric juice formation and HCl releases with the help of oxantic cell. The pH of HCl, the pH of HCl is 1.8. So pH is 1.8, that is the optimal pH. इसका खुद का pH है optimal pH in HCl, but sorry, this is the optimal pH in HCl, but in general when the pH level is very normally activate in the separate type of enzyme, then in the pH of 1.8 maximum activate pepsin. Pepsin is more activated form in the activated part of the pH in 1.8. So 1.8 or more acidic medium is very beneficial for pepsin activation, more acidic medium. इसका मतलब हुआ कि पेप्सिन का जो एक्टिविटी है वो 1.8 सबसे बेस्ट है, यानी HCl जो होता है पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए, पेप्सिन के एक्टिविटी के लिए, पेप्सिन के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. बट अगर हम बात करते हैं कि पेप्सिन मतलब HCl तो घुल जाता है आकर के गैस्ट्रिक जूस में, तो इसका जो pH है वो 2 से 3 के बीच में बन जाता है. तो अगर कभी ऐसा ऑप्शन आए कि सर पेप्सिन का ऑप्टिमल pH वैल्यू जो वर्क है वो तो 1.8 है, मोर एसिडिक है, बट इन बिटवीन किसके बीच में काम कर सकता है, तो ये 1.8 टू 2.60 pH वैल्यू के बीच में काम कर सकता है, इन बिटवीन ये इसके बीच में काम कर सकता है. अब मान लो ये ऑप्शन आ जाए
कि ये 1.8 की जगह 2.0, ठीक है, 2.1 वो भी हो सकता है, 2.5 वो भी हो सकता है। दैट मीन्स ये इसके बीच में काम करेगा, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है 1.5, लेकिन ऑप्टिमल वैल्यू यहाँ पर HCl का 1.8 होता है। तो जब ये 1.8 के फॉर्म में रिलीज होता है तो ठीक है, लेकिन जैसे कभी कभी एसिडिक मीडियम बन जाते हैं बॉडी में तो गैसेस फॉर्म होने लगते हैं, तो ये जो है 1.5 तक जा सकता है। अगर वैसा फॉर्म बन जाता है तो पेप्सिन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और पेप्सिन मोर एक्टिवेटेड फॉर्म में काम करता है, तो ये 1.5 से 2.60 के बीच में भी काम कर सकता है, लेकिन इसका बेस्ट वर्क होता है 1.8 से 2.60 के बीच में, और ये सबसे बेहतर काम करेगा 1.8 pH लेवल पे। सो इस pH लेवल को मेंटेन करने के बाद HCl का इफेक्ट पेप्सिन पे होगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ HCl, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। गैस्ट्रिक जो इसके तो फंक्शन आपने देख लिया, उसकी वर्क भी देख लिया, कौन क्या करता है वो भी देख लिया। अब फंक्शंस ऑफ HCl, मैं ओनली फोकस कर रहा हूँ HCl के फंक्शन पे। तो फर्स्ट फंक्शन इस मेन फंक्शन, देखना याद रखना ये मेन लिख रहा हूँ मैं, इट्स मेन फंक्शन टू एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसके फंक्शन को एक्टिवेट करेगा। आप कल देखे थे एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे पेप्सिनोजेन ये इनएक्टिव होता है, कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, इसी पेप्सिन की बात मैं कर रहा, तो ये क्या चाहिए HCl, तो HCl के कारण हो गया। ये क्या है, तो ये एक्टिव फॉर्म में है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव ऐसा भी हो जाता है कि पेप्सिनोजेन और पेप्सिन में एक्टिवेट फॉर्म में कौन है, द एक्टिवेट फॉर्म इज पेप्सिन। सेकंड आपने देखा प्रोरेनिन, कन्वर्ट इनटू रेनिन, और रेनिन में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए भी HCl चाहिए। तो ये इनएक्टिव था और इनएक्टिव से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसे कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। सो HCl द मेन फंक्शन इज टू एक्टिवेट, इसका मेन फंक्शन है एक्टिवेट करना, किसको, एंजाइम्स को। दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, किल बैक्टीरिया एंड वायरस inside stomach. Suppose any type of bacteria and virus enter inside stomach with the help of food or any other medium, in that time HCl have capacity to destroy bacteria and viruses. Third, hard food molecule convert into soft food molecule. Suppose any type of the food molecule have to strength is maximum. Suppose चावल हमने खाया, चावल थोड़ा टाइट है, वो स्टमक में गया, बट स्टमक में HCl से मिलते ही वो स्वेल अप हो गया और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और स्टमक उसके पेरिस्टोलिसिस द्वारा फूड को पूरी तरह से डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सो हार्ड फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट फूड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ पॉइंट को जानने के पहले आपको एक पॉइंट जानना होगा कि सपोज हमारे माउथ में मैं बात करता हूँ, तो माउथ में स्लाइवा रिलीज होता है। अब स्लाइवा प्लस फूड जब आपस में मिलते हैं तो इसको बोलस कहते हैं। स्लाइवा एंड फूड व्हेन मिक्स देन इट कॉल्ड बोलस, इसका नाम बोलस है। और जब ये स्टमक में आएगा तो स्टमक में आने के बाद जब ये एंटर करेगा तो स्टमक में HCl प्लस जो फूड है, जो बोलस है, वो जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद ये काइम बनाता है। काइम, इट्स ए टर्म, ये काइम में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स व्हेन HCl मिक्स विथ फूड और यू से दैट बोलस, जो फूड मॉलिक्यूल माउथ में से आ रहा है
then it called the chyme. Chyme is white liquid. ये एक white liquid है, white liquid. When we take food, in that time at first saliva and food have to intermixing and form the bolus. Bolus function in the basic medium, you say in the basic medium, because the pH of saliva is basic form. After that when chyme is to form, then it function in the acidic medium. ये acidic medium में conversion होता है. अब देखो बोलस में जो सलाइवा होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन, एमाइलेज, लाइपेज, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा. अब ये मैं सलाइवा के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब ये जो एंजाइम्स होते हैं, व्हेन दिस एंजाइम्स रिएक्ट विथ HCl, क्योंकि वो बोलस को आना होगा और जैसे बोलस स्टमक में एंटर करेगा HCl उसके साथ रिएक्शन करेगा. जैसे HCl रिएक्शन करेगा सभी एंजाइम्स, ऑल salivary enzyme deactivate or stop function in stomach. स्टोमक के अंदर पहुंचते ही जो भी salivary enzymes हैं वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे. इसके फंक्शन काइम बनते ही सलाइवा के एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं. इसी फॉर्म को यहाँ लिख रहा हूँ कि सलाइवरी एंजाइम्स व्हेन एंटर इन साइड स्टोमक, then with the influence of HCl के influence के कारण these salivary enzyme stop और deactivate. सलाइवरी एंजाइम जो होते हैं उसके फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं या डीएक्टिवेट हो जाते हैं. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसमें एक दो नाम आ सकते हैं कोई भी, तो जैसे टाइलिन, तो टाइलिन होता है सलाइवरी एंजाइम. तो टाइलिन जो होते हैं, ये टाइलिन जैसे इसके अंदर आएंगे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट यानी इसके फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे. सो ये कुछ फंक्शंस है HCl के. तो फिर रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उसके नाम क्लियर है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो भी एडल्ट एंड हेल्दी पर्सन होंगे उसमें इसके जो जूइश होंगे वो 2 to 3 लीटर पर डे रिलीज़ होगा और इसका pH 2 से 3 के बीच में होगा, क्योंकि सारे मिलेंगे तो सारे HCl के अलावा भी तो और बहुत सारे हैं जो एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, वो सारे मिलजुल करके 2 to 3 pH फॉर्म करेंगे. लेकिन अगर मैं केवल HCl की pH की बात करूँ तो दैट pH इज़ 1.8 और ये इस सबसे बेस्ट वर्क करता है पेप्सिन इस एसिडिक मीडियम में, क्योंकि पेप्सिन वर्क करता है एसिडिक फॉर्म में. सो इन बिटवीन 1.8 से 2.60 के बीच में या इससे कम या इससे थोड़ा आसपास एंजाइमेटिक फॉर्म हो सकता है. ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इस आंसर को देख लेना. और मेन फंक्शन है इसका, मेन फंक्शन है एंजाइम को एक्टिवेट करना और सेकेंडरी फंक्शन ये सारे हैं. अब ध्यान दो, जैसे मैं बात करता हूँ कि एक ऑप्शन आ गया कि the HCl the main function या नॉर्मल the function of HCl, मेन टर्म भी नहीं दिया और उसमें एक ही ऑप्शन आपको राइट करना है. पहला ऑप्शन आ गया, मान लो all the digestive enzymes are activate with the help of HCl और दूसरा ऑप्शन आ गया मान लो कि they kill the pathogens. तीसरा चौथा और भी है. अब आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो ये भी सही है ये भी सही है. लेकिन मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन है एंजाइम को डीएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करना. तो एंजाइम को एक्टिवेट करना मेन फंक्शन है. तो आपको इसमें दोनों सही होते हुए भी एक ही ऑप्शन को राइट करना होगा, तो ये होगा. और अगर आपको ये दोनों राइट ऑप्शन आए 1 and 2 बोथ, तो बोथ करना है. तो इस बात पे ध्यान देना, ये सेकेंडरी फॉर्म में वर्क करेगा और ये प्राइमरी फॉर्म में वर्क करेगा. तो ये था HCl के वर्क और ये सारे HCl के पॉइंट. अब मैं आपको उसके
जो आपके पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स ये अलग से डायग्रामेटिक हिस्टोलॉजी में दिखाऊंगा। अब मैं बात करूंगा किस तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके स्ट्रक्चर इंटरनली कैसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी एक्सप्लेन द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। You know, in human being found two type of intestinal region. One is small intestine, another is large intestine. You know, duodenum, jejunum, ileum is the part of small intestine, and the part of large intestine is cecum, colon and rectum. Now we explain briefly in large intestine, and many type of questions also arises in this region. So you know, this is the diagram of large intestine, and in this region the one part is cecum, and cecum is not very large, it is the minimum length, and this region is called as ascending colon. This is the first A part of the second number. This region is transversely arranged, so it called as transverse colon, and this is the descending form, so it called as descending colon. So colon divided into three parts: ascending colon, transverse colon and descending colon, and the corners of this colon is called hepatic flexor and is splenic flexor also, and the lower part of this digestive part or digestive gland region, alimentary canal region, not digestive gland, alimentary canal region, is known as rectum, and rectum is the lower part of large intestine, and in this region is called as anal area or anal aperture. You also say anal aperture in that region, and in that region found two type of muscles. I explain with the help of transversely cut. This muscles is called internal anal sphincter. It is a muscle, sphincter muscles of the anal region or internal region. This is the internal muscles, and one is called external anal sphincter. Two type of sphincter muscles present in the region and combinedly called as anal muscles. And in the red color we express in that region normally found renal, not renal, it is called rectal artery, because rectum is the name, and in this region, rectum region, found rectal artery or vein. This vein or artery normally present in this region, and whole region of this small intestine, large intestine, inner region, small segmental parts form present orbital plexus and miscellaneous plexus also. Now one by one we explain. At first we explain the cecum. Cecum is smallest part, and alimentary canal, the small intestine in this region, that is jejunum, ileum, also folded and open in the region of cecum. When ileum open into cecum, the junction point is called iliocacal junction. That means in this region ileum have to open, ileum open in this region, ileum have to open in this region. So ileum open into large intestinal region, that region is called iliocacal region, and the area is cecum area. So cecum, and just lower part of iliocacal region found appendix. Iliocacal region just lower the 2 centimeter, iliocacal region to 2 centimeter lower part present appendix. In general, the length of appendix, the length of appendix in between 2 to 20 centimeter is normal. Okay students, that means if the length is 2 to 20 centimeter,
then it called normal length. In different people, the length is 2, 3, 4, 5, 10 centimeter and maximum 20 centimeter, it is the normal. This appendix is vestigial organ, that means not any type of functions in human being. But when the length have to increase or they have to swell up any reason, then excess pain create in abdominal region, and that pain is pinching point, and this type of pain is if continue in 1 to 2 years, in that time this appendix have to swell up and blast maybe, and if blast then excess bleeding in this region and sometime persons will be die. So doctor suggested that if appendix have to infected, in that time this appendix have to cut and separate from the body. But in the modern scientists, they have developed new technique. They not cut and separate, they only cut the specific artery, vein and nerve related part in that region, and the appendix or infection have to normalize form and no any type of the side effect. So in the modern scientific research, this appendix have to not remove from the body, only cut the nerve part or artery vein part. It's sure that when cut, then it's normally shrink, and they also present in our body but shrink but not spoiled. So a specific technique have to develop. The spoiling probabilities is very less, but their swelling nature and other type of activities have to slow down, and this type of appendicitis is says appendix have to separate or operation is called appendicitis also. Now you have to see in this region internally found a tube, and that tube is called as normal tube, and this tube is connected in the region of rectum to descending colon to transverse colon to ascending colon to cecum, etc. And sometime not into the every people, in some time if the fecal matter have to enter in this region, and that fecal matter is passes from this region to this region and enter some fecal drops in that region, then appendix have to swell up and pain have to start. Other region have to bacteria infection, sometime any type of accidental jerk. This type of condition have to infect the appendix, otherwise appendix normally present in our body, not any type of function, so it called vestigial organ. But in herbivorous animal like the cow, buffaloes, goat, etc., appendix is more functional and they help to digestion of cellulose, and appendix present in the region of the cecum, so cellulose digest in the area of the cecum because their secretion in the cecum region, and cellulose have to digest in cecum region, but not any function in human. So at first point we write down the cecum, lowest short or small part, Second point, iliocacal junction present in cecum, iliocacal junction, present in cecum, and in this region, ileum have to open, ileum open in that region. Just lower part of iliocacal region near about 2 centimeter found appendix,
appendix, just lower part of this region 2 centimeter near about form the appendix. An appendix is vestigial in human. You know, appendix is vestigial in human, not any type of the effect in our body, and cellulose digestion power have not present in our body because appendix is vestigial. But we explain other animals, other animal form, and that animals are suppose herbivorous, and herbivorous animals examples cow, goat, etc. Appendix is functional. Appendix is functional and help to cellulose digestion and help to cellulose. Cellulose is most important part in the green herbivorous leaves, herbivorous areas, and herbivorous animal have to when take the leaves and other type of grasses, and that time cellulose is maximum in that region, and cellulose when enter into the stomach and when reach into the large intestine region, then cellulose have to digest. So appendix is functional and help to cellulose digestion. You have to remember cellulose digestion not into the stomach or small intestine, cellulose digestion in the region of cecum. This is most important because cellulose digestion in region of the cecum, because appendix release different type of chemical and enzymes, and that chemical and enzyme reach into the cecum region and with the help of tubal part to diffuse, and after that food have to digest and mainly cellulose have to digest. But in human being cecum region no power to digestion and no participation of the appendix in human body. So this is not functional in human, only the other organisms point. Okay. Now you know second part is colon, ascending colon, transverse colon and descending colon, and colon is the largest part in large intestine. So second part is colon. Colon divided into three parts. One is called ascending colon, second is transverse colon, because it present transversely in our stomach region, so it called transverse colon, and third is descending colon. And you say that colon is the longest part of large intestine. Okay. And third part is rectum. Now we explain the rectum point. You know this region is called the rectum, and in that region found two type of muscles in anal area or anus region. Last end part is anus, and this tube like area is the anal area, and this is called as the rectum. One is internal anal sphincter. This sphincter is involuntary function. You know involuntary means not control in our brain functional activity, they automatically activate, automatically deactivate, etc. That is involuntary. And external anal sphincter is voluntary. External is voluntary. Voluntary function means they have to control itself, and their function also control with the help of
our mind thought activity. And when nerve impulses release from brain part, in that time we have to participate, we have to power to ejaculate, or you have to power to thrown out of the fecal matter from the anal region. When some specific pain or any type of activity develop in this region, so fecal deposit, and after that this fecal have to thrown out down out from this region with the help of external anal sphincter muscles. But internal also participate in that time, and they have not participate, they have to depend their involuntary function. So our mind activity is not control the internal anal sphincter, our mind activity only control the external anal sphincter, and after that fecal matter have to passes from this region. अब देखो बच्चों, इस रीजन पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसका नाम है रेक्टल आर्टरी एंड वेन. सपोज रेक्टल आर्टरी एंड वेन नॉर्मली फंक्शन करते हैं, पूरे रीजन पे होते हैं, इधर भी है इधर भी है, पूरे फिकल रीजन के जो एनल पार्ट है पूरे में है. बट कभी कभी कॉन्स्टिपेशंस होते हैं किसी में ज़्यादा, एंड जिसको हिंदी में कब्जी बोलते हैं, उस समय अगर फिकल मैटर यहाँ ज़्यादा दिनों तक डिपॉजिट रह गए और ये फिकल मैटर यहाँ से आउट नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है रेक्टल आर्टरी और वेन में. और हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हो, इन्फेक्शन हो किसी पैथोजन का, तो ये लूज हो जाता है. अगर ये लूज हो जाए तो ये फीकल मैटर के साथ साथ इस आर्टरी वेन का पार्ट भी फीकल मैटर को थ्रो आउट करने के टाइम पे बाहर आ जाते हैं और ब्लीडिंग होता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पाइल्स. इसको पाइल्स नामक डिजीज कहते हैं. ये एक डिजीज है. इसका मतलब है कि अगर किसी कारण से रेक्टल आर्टरी और वेन ये लूज हो जाएं और लूज होने के बाद आउट इन द टाइम ऑफ फीकल मैटर रिलीज, फीकल मैटर को रिलीज करने के दौरान अगर ये आउट हो जाए तो इसको पाइल्स कहते हैं. याद रखना ये अंदर से भी कनेक्ट है, तो इसलिए पूरा आउट नहीं होगा, केवल फीकल मैटर एनस के रीजन से आउट आएगा. फिर इसको थोड़े समय बाद खुद ही या अपने आप ये अंदर चले जाते हैं, और ऐसा बार बार होने पे यहाँ ब्लीडिंग बहुत होती है. पाइल्स के जो डिजीज होते हैं, जिसमें पाइल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी रीजन में बॉडी में अगर कोई आउटग्रोथ हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको पाइल्स कहते हैं. पाइल्स का मतलब होता है एक्सेस ग्रोथ. एक्सेस ग्रोथ अब लूज के कारण हो, चाहे किसी एक्स्ट्रा मस्कुलर डिपोजिशन के कारण हो, कोई भी रीजन हो, अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है पाइल्स. अगर पाइल्स हो गया तो इस रीजन पे होने के कारण एनल पाइल बोलते हैं. अब क्या करते हैं डॉक्टर, ऐसा होने पे लंबे समय तक ब्लीडिंग होने पे काफ़ी लॉस होता है, तो ये पेन भी काफ़ी करता है, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आउट हो रहे हैं इसको कट करके इसके ट्यूब को फिर नॉर्मलाइज कर देते हैं, फिर ये बाहर नहीं आता है, और इस प्रकार से इसका ऑपरेशन से सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है. तो ये जो रीजन है ये रेक्टम का रीजन है. तो आपने रेक्टम में क्या क्या देखा, यू नो रेक्टम में 2 टाइप के मसल्स हैं. एक है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स, और दूसरा है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स. ये 2 मसल्स हो गए. इसके अलावा इसमें एनल एपर्चर या एरिया है, और इसका एंड पार्ट जो होगा वो एनस में जाएगा. एनस भी इसमें है. इसमें आपने देखा कि किसी किसी में अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है रेक्टल आर्टरी या वेन का, तो पाइल्स नामक डिजीज हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल वर्क करता है. जो भी फीकल मैटर होता है वो इसी में जमा होता है. तो फीकल मैटर का मतलब मल, तो फीकल मैटर डिपॉजिट इन दिस रीजन, फीकल मैटर का डिपोजिशन इसी रीजन पे होता है.
फीकल मैटर का डिपोजिशन इसी रीजन पे होता है। अब देखो, अब हम बात करें कि सर इसमें सिस्टोल डायस्टोल होगा, तो यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा, लेकिन सिस्टोल डायस्टोल सबसे ज़्यादा स्टोमक में, फिर ड्यूडेनम में, फिर जेजुनम में, फिर इलियम में और लार्ज इंटेस्टाइन में आते आते जो रेट ऑफ पेरिस्टोलिसिस होता है वो डिक्रीज होगा, फिर भी होगा। तो सीकम के रीजन पे होगा, असेंडिंग कोलोन के रीजन पे होगा पेरिस्टोलिसिस, ट्रांसवर्स रीजन पे होगा पेरिस्टोलिसिस, डिसेंडिंग कोलोन रीजन पे होगा पेरिस्टोलिसिस, लेकिन रेक्टम रीजन पे पेरिस्टोलिसिस कम होगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पेरिस्टोलिसिस होता तो जो फीकल मैटर है वो उसमें हमेशा पेरिस्टोलिसिस होता तो पेन होता तो फीकल मैटर के जो पार्ट्स होते हैं थोड़ा सा डिपोजिट होते हैं, आउट हो जाते हैं, थोड़ा डिपोजिट होते हैं, आउट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि रेक्टम में पेरिस्टोलिसिस बहुत ही कम होता है। तो मैं पेरिस्टोलिसिस की बात करता हूँ कि एलिमेंट्री पेरिस्टोलिसिस की बात करें तो पेरिस्टोलिसिस इज नॉर्मल जैसा होना चाहिए, बट स्लो होगा। स्लो नहीं लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पेरिस्टोलिसिस नॉर्मल। सेकंड नंबर जो कोलोन है इसमें भी पेरिस्टोलिसिस नॉर्मल, लेकिन रेक्टम रीजन पे जो होगा पेरिस्टोलिसिस वेरी लेस। इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं, यानी सबसे कम पेरिस्टोलिसिस किस रीजन पे होगा, तो रेक्टम रीजन पे पेरिस्टोलिसिस वेरी लेस, नेग्लिजिबल, शो वेरी लेस अमाउंट ऑफ पेरिस्टोलिसिस फाउंड इन द रीजन ऑफ द रेक्टम, और बाकी दोनों में नॉर्मल होगा। और ये जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम में तो होगा ही होगा, स्टोमक में तो होगा। इस तरह से पेरिस्टोलिसिस की बात मैंने किया। अब देखो, इस पूरे रीजन में कुछ भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आ जाए, क्योंकि आएगा तो यहाँ से, इसी रीजन से एंटर होगा, और ये इस साइड से जाएगा ऊपर, फिर इस साइड से ऊपर जाएगा, ऐसे करते हुए मूव करेगा, यानी इसका मूवमेंट इस साइड से होता हुआ फिर नीचे की तरफ होगा। तो ये इससे एंटर होकर इधर जा रहा है, इसलिए इसका नाम असेंडिंग, इसका नाम ट्रांसवर्स और इसका नाम डिसेंडिंग। अब बात करते हैं कि सर जब ये जाता है तो जब ये फूड मटेरियल इसमें से जाएगा तो इसमें क्या क्या हमारे बॉडी इससे रीअब्जॉर्ब करेंगे। जैसे आपको पता है कि विलाई, माइक्रोविलाई इसके पास भी है, और विलाई माइक्रोविलाई जो होते हैं उसका पार्टिसिपेशन होता है कि फूड मटेरियल जो डाइजेस्टेड पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करना। बट इस रीजन से जो है फूड में कोई भी न्यूट्रिएंट हो अब एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में H2O एब्जॉर्ब होगा। हमारे बॉडी सेल के द्वारा इस लार्ज इंटेस्टाइन से H2O वापस हमारे बॉडी में आ जाएंगे। अब किसी किसी में क्या होता है, फीकल मैटर यहाँ आ गया, बहुत लंबे समय तक रहता है, आउट नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ से वाटर निकलता रहता है, हमारे बॉडी में आता रहता है, यहाँ से फीकल मैटर में जो वाटर है, तो फीकल मैटर के वाटर जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो फीकल मैटर यहाँ टाइट हो जाता है और इसको कब्जी बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। फिर ये आउट नहीं होने में दिक्कत होती है। इसके आउट होते समय एनल कैनाल के जो भी टिश्यूज होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। एनल कैनाल के टिश्यूज जो होते हैं वो ब्रेक होने के बाद रिपेयर भी हो जाते हैं क्विकली, बट ये ब्रेक कर देते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होती है। तो ये H2O को हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्ब कराता है। क्लियर? तो आपने इस तरह से क्या क्या देखा इसमें एक बार रिवाइज कर लो। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, सीकम में इलियोकैकल रीजन प्रेजेंट, इसके 2 सेंटीमीटर नीचे अपेंडिक्स प्रेजेंट, अपेंडिक्स वेस्टिजियल ह्यूमन, बट हार्निवोरस एनिमल में इसके कारण सेलुलोज का डाइजेशन होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंसान में अपेंडिसाइटिस के बाद अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया, अब वो पालक साग खा रहा है, डाइजेस्ट करेगा कि नहीं? अरे भाई साहब, जब वो पहले खा रहा था तब भी वो डाइजेस्ट कर रहा था, अब भी वो खाएगा तो भी डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि हमारे को सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करना है। पालक साग में जो विटामिन होते हैं, आयरन होते हैं, उनको हमें एब्जॉर्ब करना होता है। तो हमारे लिए अपेंडिक्स आज है तो भी कोई काम नहीं कर रहा है, और नहीं रहेगा तो भी कोई काम नहीं करेगा। तो अगर कोई आदमी अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद अपेंडिक्स को रिमूव भी कर दे तो भी वो साग खाने पे उसके शरीर के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जैसा डाइजेस्ट हो रहा था वैसे ही होगा, क्योंकि ये तो कोई काम हमारे लिए कर ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये हार्निवोरस एनिमल के लिए फंक्शनल करेगा और उसमें सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और सेलुलोज का डाइजेशन इस रीजन पे होगा, सीकम रीजन पे, क्योंकि केमिकल का रिलीज ये करेगा और यहाँ पर डाइजेशन होगा सेलुलोज का हार्निवोरस एनिमल में। एसेंडिंग कोलन से फूड पास आउट होते होते यहाँ से होते होते नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद फिर ये खुल रहा है। एक बात याद रखना बच्चों,
इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे फोल्ड्स हैं ऐसे फैले हुए, सिकुड़े हुए। इस फोल्ड्स को हॉस्ट्रा कहते हैं, फोल्ड्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के जो फोल्ड्स होते हैं, इस फोल्ड्स को हॉस्ट्रा कहते हैं। एक टर्म है हॉस्ट्रा, मीन्स फोल्ड्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और हॉस्ट्रा जो होगा वो मैक्सिमम होगा कोलोन में, मैक्सिमम हॉस्ट्रा यानी बहुत ज़्यादा फोल्ड जो होगा, मैक्सिमम हॉस्ट्रा फाउंड इन कोलोन। और कोलोन के रीजन पे इसके नंबर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोलोन खुद ही लंबा है, कोलोन लंबा है तो हॉस्ट्रा का नंबर भी ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ हॉस्ट्रा इज मैक्सिमम इन द रीजन ऑफ कोलोन, चाहे असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो या ट्रांसवर्स हो। और रेक्टम रीजन पे भी होगा और सिकम रीजन पे भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा होगा आपके कोलोन के रीजन पे। और इस तरह से आपने रेक्टम के पार्ट, इंटरनल एनल स्पिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर, इसके वर्क एंड ये सारे पॉइंट्स जो है क्लियर कर लिए। तो इस तरह से आपने लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपके आए तो आप इन पॉइंटों को याद रखने पे सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।